Okay, let's move on to the next type of reading question type. This is uh, paragraph where you have to choose headings for different subparagraphs from the given list of headings. So here you have to read passage 1, which has 5 sections A to E, and we have to choose the correct heading for each section from the list of headings. List of headings may be more than the number of paragraphs. So sometimes these questions become difficult. But if you can understand the passage correctly, then it is easy to scan and find the correct heading. So we can move on to the passage and read and understand. This is about the physics of traffic behavior, passage A. Some years ago, when several theoretical physics, principally Albin Boris Kerner of Stuttgart, Germany, began publishing papers on traffic law in publications normally read by traffic engineers, they were clearly working outside their usual sphere of investigation. फिजिक्स से लेकिन ये कुछ ट्रैफिक के रिगार्डिंग कुछ काम कर रहे हैं तो उनके नॉर्मल स्फेयर से बाहर है. They had noticed that if they simulated the movement of vehicles on a highway using the equations that describe how the molecules of gas move, some very strange results emerge. Of course, vehicles do not behave exactly like gas molecules. तो उन्होंने एक नोटिस की कि अगर हम व्हीकल्स की मूवमेंट को सिमुलेट करें, एक तरीके से देखें, तो जो हाईवे पे व्हीकल्स मूव कर रहे हैं उसकी इक्वेशन जो बनेंगी डेट वुड मोस्टली डिस्क्राइब हाउ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस मूव. बट सम स्ट्रेंज रिजल्ट्स इमर्ज. व्हीकल्स गैस मॉलिक्यूल्स तरह बिहेव नहीं करते. फॉर एग्जांपल, ड्राइवर्स ट्राई टू अवॉइड कोलिजन. ड्राइवर्स तो कोलिजन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं बाय स्लोइंग डाउन व्हेन अनदर व्हीकल कम. बट गैस मॉलिक्यूल्स को कोई ये कंसर्न नहीं होता, वो स्लो नहीं करते. और वेदर फिजिक्स modify the equations to take the differences into account, and overall description of traffic as a flowing gas has proved to be a very good one. लेकिन वो equations को थोड़ा change करके ये difference को account में ले लेते हैं, and overall description of traffic as a flowing gas उन्होंने एक अच्छी equation बनाई. The moving gas model of traffic reproduces many phenomena seen in real world traffic. तो ये moving gas model बनाया ट्रैफिक का, वो एक रिप्रोड्यूस करता है काफी सारी चीजों को जो कि रियल वर्ल्ड ट्रैफिक में हो रही है. The strangest thing that came out of these equations, however, is that the implication that congestion can arise completely spontaneously. इसमें से इक्वेशन से ये पता लगा strangest thing कि जो ट्रैफिक की कंजेशन जहाँ रश होता है एकदम से, वो एकदम से ही अराइज होता है, कोई एक्सटर्नल cause necessary नहीं है. Vehicles can be flowing freely along at a density still well below what the road can handle, and then suddenly gel into a slow moving ooze. व्हीकल नॉर्मली फ्रीली मूव कर रहे हैं और जो रोड की डेंसिटी है उससे कम में व्हीकल्स वहां पे जा रहे हैं, लेकिन एकदम से ही वो एक स्लो हो जाएगा ट्रैफिक. तो एकदम से ही एक स्पॉन्टेनियसली कंजेशन राइज होता है. अंडर द राइट कंडीशंस अ ब्रीफ एंड लोकल फ्लक्चुएशन इन द स्पीड और डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल्स इज ऑल इट टेक्स टू ट्रिगर अ सिस्टम वाइड ब्रेकडाउन. तो अगर कंडीशंस राइट हैं तो जस्ट एक छोटा सा फ्लक्चुएशन, चाहे स्पीड का हो चाहे डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल्स, जो थोड़ा सा भी चेंज होगा तो वो ट्रिगर कर देगा सिस्टम वाइड ब्रेकडाउन, जो कि काफी घंटों तक जाम लगा रहेगा. इनफैक्ट फिजिक्स एनालिसिस सजेस्टेड सच स्पॉन्टेनियस ब्रेकडाउन इन ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्ली अकर क्वाइट फ्रीक्वेंटली ऑन हाईवे. तो यहाँ पैराग्राफ में मुझे क्लियर हुआ कि फिजिक्स अपना एक मॉडल बना रहे हैं ऑन ट्रैफिक. तो इसमें से ऑप्शन चूज करके देखें कुछ क्या ऐसी कोई ऑप्शन हेडिंग है इसमें. dramatic effects. Okay, no. How a mass experiment actually reduced. No. How a concept from one field of study was applied in another. ये हो सकता है थर्ड, कि एक फील्ड का कंसेप्ट, फिजिक्स का कंसेप्ट उन्होंने इक्वेशन ट्रैफिक में लगाने की, अप्लाई करने की कोशिश की है. तो थर्ड माइट बी द आंसर फॉर सेक्शन ए. नाउ मूव ऑन टू सेक्शन बी. Though a decidedly unsettling discovery, this shows striking similarities to the phenomena popularized as chaos theory. Chaos theory. तो chaos theory एक बनी होगी, तो एक काफी सिमिलैरिटी उनको इस फिनोमेना में लगा as compared to chaos theory. This theory has arisen from the understanding that in any complex interacting system which is made of many parts, each part affect the other. एक कॉम्प्लेक्स अगर कोई सिस्टम है इसमें काफी पार्ट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक पार्ट की वजह से दूसरे पार्ट भी इफेक्ट होंगे. कॉन्सिक्वेंटली टाइनी वेरिएशंस इन वन पार्ट कैन ग्रो इन ह्यूज बट अनप्रिडिक्टेबल. वो पता नहीं लगता क्या हो रहा है उसके बाद.
This type of dramatic change from one state to another is similar to what happens when a chemical substance changes from, तो उन्होंने comparison कर दिया with some chemical substance which changes from vapor to liquid. It often happens that water in a cloud means जो cloud में water वाला gas होता है, even after its temperature and density have reached the point where it would condense into water droplets. चाहे उसका temperature density उस point पे पहुंच गया जब वो एक वाटर ड्रॉपलेट में कंडेंस हो जाए, फिर भी वो गैस फॉर्म में रहता है. लेकिन however if the vapor encounters a solid surface, अगर वेपर को सॉलिड सर्फेस मिल गया, इवन समथिंग एज स्मॉल एज स्पेक ऑफ डस्ट, इवन डस्ट अगर मिल गई तो डस्ट के ऊपर कंडेंसेशन हो जाएगी, तो ट्रांजिशन हो जाएगा फ्रॉम वेपर टू लिक्विड. हेल्पिंग एंड कर्नर सी ट्रैफिक एज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिंग, तो ट्रैफिक को भी उन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिंग सिस्टम बोला है. दे फाउंड दैट अ स्मॉल फ्लक्चुएशन इन ट्रैफिक डेंसिटी कैन एक्ट एज अ स्पेक ऑफ डस्ट. तो एक तरीके से अगर फ्लक्चुएशन थोड़ी सी भी होती है ट्रैफिक डेंसिटी में, सेम जैसे वो कंडेंसेशन होती है बिकॉज ऑफ डस्ट, तो ट्रैफिक में भी अगर स्मॉल फ्लक्चुएशन हुई, it can cause a sudden change from freely moving traffic to synchronized traffic when vehicles in all lanes abruptly slow down and start moving at the same speed, making passing impossible. तो ये भी एक थ्योरी से कुछ इन्होंने किया है. इसका ऑप्शन देखते हैं. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट नो, एरिया ऑफ डाउट एंड डिसिजन नो, तो ये तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है. आई one example, dramatic effects can result from small changes in traffic just as in nature. Cloud example, section B is already done. The heading is 1. Now third section, section C, the physicists have challenged proposal to set a maximum capacity for vehicles on highway. उन्होंने एक चैलेंज किया है प्रपोजल का कि एक व्हीकल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी हाईवेज पे हम सेट कर सकते हैं. They argue that it may not be enough simply limit the rate at which vehicles are allowed to enter a highway. Rather, it may be necessary to time each vehicle's entry onto a highway precisely to coincide with a temporary drop in density of vehicles along. वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि सिर्फ सिंपली हम ये रेट नहीं सेट कर सकते कि किस रेट से व्हीकल्स हाईवे में एंटर करें, बट हमें ये भी करना पड़ेगा कि हर व्हीकल की एंट्री जो हाईवे पे हो रही है वो कोइंसाइड करे विद टेम्पररी ड्रॉप इन डेंसिटी. जितने जितने व्हीकल्स की डेंसिटी कम हो रही है उतने उतने व्हीकल्स वहां से आते रहें. The aim of doing this would be to smooth out any possible fluctuation in road conditions that can trigger a, तो क्या हमारा एम जहाँ पे है कि जो भी थोड़ा बहुत पॉसिबल फ्लक्चुएशन हो सकता है वो जो ट्रैफिक बिहेवियर को चेंज कर सकता है और कंजेशन कॉज कर सकता है, तो हमें वो स्मूथ करना है. Therefore, the suggest that preventing breakdowns in the flow of traffic would ultimately require implementing the radical idea that has been suggested from time to time. हमें ये radical idea implement करने की जरूरत पड़ सकती है. Directly regulating the speed and spacing of individual cars along a highway with central computers. तो व्हीकल्स की स्पीड और उनके बीच में कितनी स्पेस है along a highway, वो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा विद सेंट्रल कंप्यूटर एंड सेंसर्स जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं विद ईच कार्स इंजन एंड ब्रेक कंट्रोल. काफी ये आइडिया है रेडिकल. तो इसमें से देखें ऑप्शंस. फर्स्ट वाला तो हो गया मैथ एक्सपेरिमेंट, तो है नहीं है. कंसेप्ट ये तो हो गया. लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है. एरिया ऑफ डाउट भी नहीं है. हाउ डिफरेंट कंट्रीज हैव डेल्ट, कंट्रीज की बात ही नहीं हो रही है. द इम्पैक्ट ऑफ ड्राइवर बिहेवियर ये भी नहीं हो रही है. अब प्रपोजल की बात हो रही है, तो इट कैन बी सेक्शन सी. आंसर इज 8. अ प्रपोजल टू टेक कंट्रोल अवे फ्रॉम द ड्राइवर. नाउ डी, पैराग्राफ डी. However, research into traffic control is generally and centered in civil engineering departments. तो रिसर्च है ट्रैफिक कंट्रोल की वो मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखता है. एंड हियर द थ्योरीज ऑफ फिजिक्स हैव बीन ग्रीटेड विद सम स्केप्टिसिज्म. तो वहाँ पे वो फिजिक्स की थ्योरी नहीं मानते हैं, मतलब कि कई मानते हैं कहीं नहीं मानते हैं. सिविल इंजीनियर्स फेवर अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम, बिलीव ट्रैफिक कंजेशन रिजल्ट ऑफ पुअर रोड. तो सिविल इंजीनियर तो ये मानेंगे पुअर रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से, जैसे 2 लेन्स 1 लेन बन गई या कोई डेंजरस कर्व बन गया, उस वजह से क्या ट्रैफिक कंस्ट्रक्ट हो गया. इंजीनियर्स क्वेश्चन हाउ वेल द फिजिक्स थ्योरेटिकल रिजल्ट्स लिव ट्रैफिक इन, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि आपका जो फिजिक्स वो तो थ्योरेटिकल है, वो रियल लाइफ में कैसे हम इसको मान लें. इंडीड सम इंजीनियरिंग रिसर्चर्स क्वेश्चन वेदर इलैबोरेट chaos थ्योरी इंटरप्रिटेशंस आर नीडेड एट ऑल. वो तो क्वेश्चन नहीं कर दिया कि कुछ थ्योरी के ये वाली जो chaos थ्योरी उन्होंने कंपैरिजन किया था वो रिक्वायर्ड भी है कि नहीं है. Since at least some of the traffic phenomena, the physics theories predicted seem to be similar to observations that had been appearing in traffic engineering literature under other names for years. क्योंकि ये जो फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं वो काफी देर पहले ट्रैफिक इंजीनियरिंग लिटरेचर में काफी सालों से सेम तरीके से ऑब्जर्व किया गया है. ऑब्जर्वेशन विच हैड स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉज एंड इफेक्ट. तो मतलब डाउट है कुछ, तो डाउट वाला हेडिंग देखो कुछ है इसमें.
कुछ अग्री कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो ये एरियाज ऑफ डाउट एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन एक्सपर्ट्स, तो पैराग्राफ डी का आंसर होगा 5। Last is E. James Bank, a professor of civil and environment engineering at San Diego State University in the US, CST that a sudden slowdown in traffic may have less to do with chaos theory। तो एक प्रोफेसर ने बोला कि वो अगर स्लो डाउन हो रहा है ट्रैफिक का, वो chaos theory से बहुत कम रिलेशन है देन विद ड्राइवर, वो ड्राइवर की साइकोलॉजी के ऊपर लेके जा रहा है। As traffic gets heavier in a passing lane that's more crowded, aggressive drivers move to other lanes। तो हम देखते हैं रोड्स पे ड्राइवर को अगर लग रहा है कि एक लाइन में अगर रश ज्यादा है, तो वो दूसरी लाइन में मूव करने की कोशिश करता है, which also tends to even out the speed between lanes। तो he also felt that another leveling force is that when a driver in a fast lane breaks a little to maintain a safe distance between vehicles, कि अगर कोई ऐसी another force है जिसकी वजह से जो कोई ड्राइवर एक फास्ट लेन में ब्रेक लगाता है लिटिल टू मेंटेनेंस, ताकि वो अगले व्हीकल्स में स्पेस मेंटेन करने की कोशिश करे, तो उसकी शॉक वेव है, उसने डिस्टेंस जो उसने इंक्रीज या डिक्रीज किया है, वो दैट शॉक वेव ट्रेवल्स बैक मच मोर रैपिडली देन इट वुड बी इन अदर स्लोअर लेन्स। वो स्लोअर लेन्स में उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ईच फॉलोइंग ड्राइवर हैज टू रिएक्ट मोर क्विकली। फास्ट लेन में एकदम से रिएक्ट करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली as the road becomes congested, the faster moving traffic is the first to slow down। तो जब भी रोड कंजेस्ट होगी, तो जितनी तेज रोड जो लाइन चल रही है वो सबसे पहले स्लो होगी। तो इसमें एक ड्राइवर साइकोलॉजी का इसने कुछ फंडा यूज किया है। तो इसमें हम ऑप्शन देखें कौन सी हो सकती है। He also does have on the impact of driver behavior on traffic speed। It can be 7। You can check the answers। ये हमारे आंसर्स काफी सही हैं। इम्पैक्ट ऑफ ड्राइवर बिहेवियर ऑन ट्रैफिक स्पीड, एरियाज ऑफ डाउट, प्रपोजल था, और एक हाउ एक वन कंसेप्ट। तो इससे ये अंडरस्टैंड होगा, अगर आपको हेडिंग वाला हेडिंग पैसेज से ढंग से करना है, तो आपको पैराग्राफ को एक तरीके से अच्छी तरह समझना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा हेडिंग को, देन यू हैव टू चूज द हेडिंग।